Let's start with our today's interaction. What I remember, the first question that Renu had asked us is about liberation. जहाँ पे typically, you know what I understand in Renu, if you can add if you think anything that I've missed out. कि क्या liberation, how do we get liberation, and is liberation really possible going beyond this cycle of birth and death? इसके beyond जा सकते हैं क्या? Right, so that's the question I remember that had come from Renu. It comes from Renu. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So, okay. Okay. First thing first, is it possible to go beyond the cycle of birth and death? The answer, as per Raj Yoga, is no. Nobody of us goes beyond except for the Supreme Being. Okay, no human soul can go beyond this cycle of birth and death. Okay, but at the same time let us understand what this concept of liberation is all about. जैसे हमने बीच में भी एक दिन डिस्कस किया था ना कि हम जब बहुत खुश होते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, लाइफ इज जस्ट गोइंग फाइन, चांसेस आर कि उस समय पे हम लिबरेशन या मुक्ति या उन सब से छूटने की बात यूजुअली नहीं करते हैं, राइट? यूजुअली हम चीज़ों से छूटने की बात कब करते हैं? व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट, सैडनेस, अनहैप्पी सिचुएशंस इन लाइफ. टिपिकली हम जब देखते हैं ज़्यादातर तो लोग उन सिचुएशंस में मुक्त होना चाहते हैं, दैट आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस, इट्स बेटर टू नॉट टेक बर्थ. या सो अंडरस्टैंडिंग दैट लिबरेशन, किस चीज़ से हम लिबरेशन चाहते हैं? फर्स्ट इज हम लिबरेशन एक्चुअली बिकॉज हम दुख में ऊपर वाले को याद करके ये बोलते हैं कि भाई हमको इन सब से छुड़ा. इट ओनली मीन्स दैट वी आर सीकिंग लिबरेशन फ्रॉम दीज experiences which are unhappy experiences, unhappy and not so peaceful situations. ये जो सारा chaos और unhappiness या ये anger, frustration, insecurity, jealousy, loneliness, ये सारी feelings जो है ना, they push us to kind of, या फिर world around, if we see all these things in world around, हमें लगता है भाई अब ये तो we need liberation. So understanding that liberation हम किस चीज़ से चाहते हैं? Typically liberation हम इन चीज़ value से चाहते हैं, ठीक है? Now coming back to the question, see, every soul has some recordings of the role that they have to play. Soul and role, okay? When it is the time for that soul to start playing that role, that recording starts playing, the soul comes to this physical world, plays its role, and when it is time to go back, when the cycle of entire drama ends, all the souls go back to their, हमने जिनकी बात करी थी, जो आत्माओं का घर या शांति धाम, we go back there. Okay, but there is only one being who is completely free of this entire cycle of this world drama, so called, and that is the Supreme Being. So if there is a question of liberation chahiye, so the only period of this 5,000 years of world cycle drama, जिसकी हम अभी बात भी करेंगे, इसमें the only period when you actually get liberation from this experience of human journey is when we are in the soul world. Okay, when we are in the soul world, इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे ना, we'll just understand this a little bit in detail because it also covers one of the topics of our Raja Yoga meditation, which is world drama cycle. ठीक है, अब ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल क्या है? सी, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, हमने 3 वर्ल्ड्स की बात करी थी. इफ यू रिमेंबर ऑन आई थिंक डे 2 हमने एक बात की थी कि देयर इज अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी आर एक्चुअली, व्हेन वी एक्चुअली टेक दिस ह्यूमन बॉडी, वी प्ले आवर रोल्स, इट्स कॉल्ड द फिजिकल वर्ल्ड. ओके, देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट समथिंग विच इज सोल वर्ल्ड. नाउ सबसे पहले जो आत्मा ऊपर अपने घर से, व्हेन इट कम्स टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, अभी देखो, जैसे कोई भी, अगर हम घर की भी बात करते हैं, एक नया घर बनाते हैं, घर बहुत अच्छा होता है, बहुत घर एकदम नया पेंट किया हुआ, पूरा कंस्ट्रक्शन नया हुआ, बहुत अच्छा घर होता है, इसमें कोई लीकेज नहीं होती, कहीं पेंटिंग, कहीं दाग नहीं होता, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है. जैसे जैसे हम उस घर को यूज़ करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज
वो घर पुराना होते जाता है, कई क्रैक्स आ जाती है, धीरे धीरे सारा खराब होने लगता है, बिकॉज वी आर यूजिंग इट, राइट? एंड स्लोली इट स्टार्ट्स डिटोरेटिंग, एंड दैट हैपन्स विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज जो है गोज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट स्टेज टू इट्स कमिंग डाउन टू इट्स लोएस्ट स्टेज। नाउ वन क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज, जब वो पूरी तरह से, सपोज वो घर में पूरा लीकेज है, इट्स इन अ बैड शेप, व्हाट इज इट दैट यू डू? हम क्या करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? रिपेयर वी रिपेयर रिपेयर करते इट। वंडरफुल, हमने बहुत रिपेयर कर लिया। अब आप ना कभी मुंबई के न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी मकान हैं जो इतने पुराने हैं, उनकी रिपेयरिंग हो कर, मरम्मत हो कर, अब तो ऐसी कंडीशन भी नहीं रही जहाँ पे उसकी मरम्मत हो सके। ऐसा देखा है आपने? कहीं न्यूज़ पढ़े हैं कभी ऐसे? या अगर वो स्टेज पे आ गया है तो व्हाट डू वी डू? तो फिर क्या करना तोड़ चाहिए? के पूरा नया पूरा बनाएंगे। तोड़ के नया बनाना चाहिए। ओके, एनी अदर थॉट, एनीबडी? That's exactly what this 5,000 cycle years of world cycle is when we actually come into this world. Okay, because आत्मा अभी अपनी सतो प्रधान स्टेज, सतो प्रधान स्टेज का मतलब क्या है? सातों गुणों में फुल इज कॉल्ड सतो प्रधान स्टेज। या सो सातों गुणों में फुल है वो, और जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज। आत्मा की जो स्टेज है, बिकॉज आत्मा की स्टेज प्योर है, एवरीथिंग आउटसाइड, सी टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी डिटोरेटेड, द एनवायरमेंट, नेचर, एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज वी एक्सप्लॉइटेड इट, नो? बट जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, where the soul is full and is giving, तो वहां पे नेचर, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज इन इट्स सतो प्रधान स्टेज। सो प्रकृति और पुरुष जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि पुरुष मीनिंग आत्मा इज इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, द प्रकृति ऑल्सो रिमेन्स इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। बट स्लोली जैसे जैसे घर पुराना होता जाता है, वी कम फ्रॉम गोल्डन एज टू सिल्वर एज। वही आत्मा की स्थिति धीरे 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 करके डिप्लीट होती जाती है, सातों गुणों में थोड़ी 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 कमी आती जाती है। त्रेता से हम द्वापर आते हैं, द्वापर इज कॉपर एज। ओके, you've heard this and we've seen this in many religions also, है ना? हमने इसके ये वर्ड्स तो कहीं कहीं सुने होंगे, बहिष्ट, अल्लाह, गार्डन ऑफ ईडन, या जो भी, सो मेनी नेम्स, गोल्डन एज, सतयुग, बहिष्ट, स्वर्ग, अलग अलग नाम से we've heard these terms, no? So there is some there is some logic behind why these words are used. So जब घर नया है, सतो प्रधान स्टेज में है सतयुग, फिर त्रेता युग which is silver age, then copper age and then iron age. Where are we today? What do you think? आपको क्या कलयुग। लगता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस से विकास इज सेइंग कलयुग। किन किन को लगता है इट इज कलयुग राइट नाउ? किनको किनको लगता है, जरा डालो चैट बॉक्स में दैट हाँ कलयुग है, ऐसे लग तो रहा है। मैम लोग तो कहते ही हैं कि कलयुग चल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है अमरीश? चलो, लोग तो कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? डू यू फील दैट द वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टेज वेयर सब कुछ बहुत ज्यादा इन अ chaotic फॉर्म आ गया है? डू यू थिंक इट इज लाइक दैट, और आपको नहीं लगता है? इट्स लाइक मैम ट्रांजिशन आने वाला है, मतलब कुछ ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसा लगता है ट्रांजिशन होने वाला है। ओके, ट्रांजिशन होने वाला है। उज्जवल says I think it is Kalyug. Renu says yes ma'am. So see, even if we look at world around, and if you look at some environmentalists जो जो predict कर रहे हैं, even if you look at those statistics, they're saying world has reached a stage जहाँ पे nature is in a very bad shape now. Next generation may not have enough oxygen, few generations from now may not have enough oxygen and so many other things. So we understand कि कलयुग का भी एक तो टाइम ऐसा था, द्वापर के बाद, द्वापर और उसके बाद कॉपर एज टिपिकली जब हम बात करते हैं, जहाँ पे रिपेयरिंग पॉसिबल था। So we saw many of these gurus, saints, lot of these very high elevated soul जिन्हें हम कहते हैं ना, who came, who gave message of peace, love, गौतम बुद्धा, ऐसे कितने अलग 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 सेंट्स आए और धर्म स्थापक आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं शांति का मैसेज दिया, सद्भावना, यूनिटी, इन सब का मैसेज देते देते वो रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लेकिन समवेयर
यूज तो कर ही रहे हैं ना, तो वो घर पुराना तो होगा ही, और एक स्टेज ऐसी आ गई है जब घर को रिपेयर करने का भी देर इज अ very little scope of that repairing really happening, and that's where we are right now. But if you look at any cycle of nature, if we look at seasons, 4 seasons, we come back to the first season. If we look at the cycle of a day, morning, afternoon, evening, night ke baad again we come back to morning. It is always that cycle that goes on, and this is also like a cycle. So Sonu very correctly pointed out to something where he said it's a transition period. Now what is this transition period typically? Okay, this transition period typically means that phase where we are going from a very low stage of human, देखो मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ. मैं जब आई गॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज अबाउट 16 years बैक. ठीक है, इट्स नॉट टू लॉन्ग, 16 years इज नॉट दैट अ लॉन्ग टाइम. लेकिन आपको पता है हमारे पूरे बैच, इनफैक्ट आई वॉज इन दैट कॉलेज फॉर 3 years एंड बोथ माई 2 professors वर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड ब्रह्मा कुमारीज एट दैट टाइम. बट मेरे पूरे 3 साल में आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु एंडेड अप saying that okay, I'm able to connect with spirituality. And believe me, spirituality, लोग आज जितना बात करते हैं ना, mental peace and spirituality and going within and so many of these concepts, believe me, they were not that in thing at that point in time. सिर्फ ये 16 सालों में मैंने खुद एक transition देखा है जहाँ पे आज youth भी seeking okay, what is that inner thing, वो कैसे हम अपने में वो development लाए. आज आप जितना aware है ना spirituality को लेकर, believe me, in our times, in our college, we were not so aware about spirituality, and it was not something that youth wanted to talk about. Now this is a sign typically that there is a need that people are feeling about that transition. ये transition क्या है? This transition is that inner empowerment. पुरुष प्रकृति जिसकी हमने बात की, बाहर का जो भी नेचर है वो आत्मा की स्टेज का उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है. या सो जितनी जितनी आत्माएं एलिवेटेड होते जाएंगी उतना उतना वो ट्रांजिशन होते जाएगा. इमेजिन अभी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इन दैट स्टेज, लो स्टेज ऑफ सोल्स, सोल की जो कैपेसिटी है उसमें हम इतने डिप्लीट हो गए. टुगेदर ऑल ऑफ अस हैव मेड इट कलयुग ना. कलयुग कैसे बना? व्हेन ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड दैट पीसलेसनेस, अनहैप्पी स्टेट, ऑल ऑफ दिस, ये जब हमने अनुभव किया, हमने ही तो मिलकर कलयुग बनाया. सो दैट ट्रांजिशन इज व्हाट, व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे इन दिस मीटिंग, क्योंकि वी आर. Sister, I have one doubt. हाँ बोलो. हमने कलयुग बनाया या कलयुग आना ही था? हमने कलयुग बनाया या कलयुग आना ही था? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन which has two aspects to it. One is ड्रामा उस फेज में चलना ही है, लेकिन उस फेज में क्योंकि हम आत्माएं डिप्लीट होती गई, तो हमारे आत्मा की कलेक्टिवली, जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, व्हाट इज दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? इट इज बेसिकली व्हेन सर्टेन पीपल कम टुगेदर विथ अ सर्टेन कॉन्शियसनेस, they start influencing the outside world. और क्योंकि वो ड्रामा में नूंद था कि हम वो वो लोअर स्टेज में पहुंचे और पहुंच के collectively we start influencing. So today we are in that stage where according to drama, जैसे आपने कहा ना बनना ही था या हमने बनाया, तो ड्रामा में ये बनना ही था और इसीलिए हमारी स्टेज वैसी हुई. Now collectively, now why youth and everybody today is seeking that spiritual upliftment is because this entire world needs only those those handful, मतलब गिने हुए कुछ आत्माओं का जो collective consciousness होगा वो उस चीज़ को transform करेगा, will bring that transformation in the world. जहाँ पे कुछ आत्माओं की, जैसे इतने करोड़ों आत्माएं हैं ना, उसमें से कुछ आत्माएं अपनी इतनी ऊंची स्टेज, ना कुछ meaning few lakhs of souls who will be in a very elevated stage, and once they reach that elevated stage, that collective consciousness will bring about that transformation in the world, and that new world will start coming. Okay, now what does it mean by this new world coming in? Now that's where I want to answer Renu's question. See, this small period, if you look at it,
ओके जैसे रात के बाद जब सुबह आती है ना, सुबह के पहले का एक वो पीरियड होता है जहाँ पे लिटिल लिटिल मॉर्निंग्स वो थोड़ा सा सवेरे जैसी फीलिंग आती है, 4-5 बजे का जो टिपिकल टाइम होता है ना, ना वो सुबह होती है बहुत, ना वो रात होती है, बट इट इज द ट्रांजिशन पीरियड। नाउ दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। और इस पीरियड में क्या होता है कि हम अपने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, हमारी ओरिजिनल पूरे ड्रामा का जो नॉलेज है वो हम गेन करते हैं। और फिर आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, ऑल ऑफ अस गो बैक टू आवर सोल वर्ल्ड, एंड दैट्स द टाइम व्हेन सोल इज एक्चुअली लिबरेटेड। क्यों हम लिबरेशन को सीख करते हैं? ऑल्सो बिकॉज सोल हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिबरेशन। ये फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाने का अनुभव जो है वो आत्मा को है, वो स्टेज में कुछ समय रहती है, और इसीलिए हम लिबरेशन को भी सीख करते हैं, बिकॉज द सोल हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिबरेशन। नाउ टिपिकली लिबरेशन क्या है? इस दुनिया से उतना समय, जब तक मेरा पार्ट इस दुनिया में आने का नहीं है तब तक मैं उस सोल वर्ल्ड में आई एम देयर, एंड दैट्स the time when we actually get liberation. But it's not like you are completely out of the cycle of birth and death. As per your role, you again come back to this role. And the good news is, जब भी हम आते हैं, whatever as per our role is the right time for us to come back to this physical world to play our role. Initial phase of the journey, every soul experiences only these 7 innate values. वो इन्हीं के आधार पे ऑपरेट करती है, बिकॉज क्योंकि जब आते हैं, सोचो हम जब खेलने जाते हैं, मम्मा कितना अच्छे से तैयार व्यार करके मस्त एकदम पाउडर वाउडर, हम छोटे होते थे ना तो अच्छे से चोटी वोटी बना के और अच्छा पाउडर वाउडर लगा के हमको नीचे भेजते थे खेलने के लिए, है ना। खेलने जाते थे तब तो ठीक थे, थोड़ी देर में क्या होता था, थोड़ी मिट्टी लगती, थोड़े बाल ये होते, थोड़ी चोट लग जाती, सब कुछ हो जाता है। एंड देयर इज अ पॉइंट वो जब छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, क्यों? एंड जैसे ही वो रोने लगते हैं, मम्मा क्या करती है, मम्मा कम्स डाउन, उठा के उनको घर लेके जाती है, फिर से नहला के उनको ठीक ठाक करती है, फिर बोलती है हाँ भी मतलब यू आर फाइन। So it is typically like that. हम वो खेलते खेलते इस सृष्टि रंगमंच जैसे कहते हैं ना, टिपिकली इन फिलोसॉफिकल दिस थिंग, सृष्टि रंगमंच पे हम खेल 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 के थक गए। So now we are now that supreme mother father comes and says, okay बेटा चलो अभी आपको तैयार करते हैं, फिर से थोड़ी सी चोट को मलहम, that pain of hurt and pain all that, उसको थोड़ा मलहम लगा देते हैं। ज्ञान योग से हमें वो मलहम मिलता है। So somewhere we heal ourselves here through meditation. Why are so many souls seeking today spirituality? 15 साल पहले कोई नहीं पूछता था इतना, आज सब पूछ रहे हैं। कहीं पे भी जाते ना, बिलीव मी, so many programs, my God, मैं ऐसा लगता है कि how is suddenly everybody seeking spirituality? मतलब I can see in 15 years, तो I wonder sometimes कि इतना क्यों लोग सीख कर रहे हैं, but it is happening because it's that time. क्योंकि मलहम की लोगों को जरूरत है, इतना दर्द है अंदर, देयर इज सो मेनी डिजीजेस अराउंड, पीपल आर सफरिंग सो मच, देयर इज सो मच पेन, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, एनवायरनमेंट से इतना कुछ हो रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। वो बच्चे वो रोने की स्टेज पे आ गए हैं, सो नाउ देयर इज दैट मलहम, सफाई, ऑल दैट इज हैपनिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, एंड देन वी गो बैक, we experience that liberation for a while, then we come back to this world. Now how does it help you as an individual in your life? Two things, okay, in two ways. Understanding that this world cycle, it keeps repeating, so every situation that you are right now into, okay, you have crossed these situations many times and you've been fine, it is okay. हेलो सिस्टर। हाँ विकास बोलो। अब मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि साइकिल चल रहा है, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है पहले से? ये स्क्रिप्टेड है। सी एवरी आत्मा का जो रोल है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हर आत्मा का जो रोल है ना, वो कहीं ना कहीं इन द सेंस देयर इज दिस रिकॉर्डिंग, but at the same time, see, why are we listening to all this? Because we want to understand how do I, spirituality क्या होता है, it is basically how do I simplify my life, ठीक है। सो ये रिकॉर्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग दैट पास्ट में जो भी हुआ इज अ रिकॉर्डिंग दैट द सोल हैज, बट डज इट मीन कि मैं फ्यूचर को लेके कुछ नहीं करूँ, सेइंग दैट ओहो जो रिकॉर्डिंग होगी वो अपने आप बजेगी? अपने आप नहीं बजेगी, अपने आप कोई फिर रिकॉर्डिंग हमारे हाथ में है क्या? हमारे जो हाथ मुझे ऐसा में लग रहा है कि
हाँ नहीं, that's a very अभी good अभी question. हम That's a very अभी deep हम लोग बैठे question. हैं, हाँ जैसे अभी हम लोग बैठे मीटिंग कर रहे हैं, तो पास्ट में भी हम कितने बार मिले होंगे और ऐसे मतलब वीडियो कॉल पे अपना मतलब राजयोग का कोर्स कर रहे थे, हम्म। बट फिर हमारे हाथ में है क्या, तो मतलब समझ में नहीं हमारे आता। हाथ में this drama, knowledge of drama is for what has come, where we've reached so far in the journey. But you know, एक है you know, that purusharth effort that we have to make, and it's a very deep question and it requires really a deep level of understanding to experiment with what I'm saying. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैं जो भी आपको बता रही हूँ वर्ल्ड साइकिल के बारे में आप तुरंत हाँ बोल दो, okay whatever you're saying is right. I'm not saying that, but Vikash, you've asked a very deep question and you may be convinced with my answer, you may not be convinced with my answer, and it's completely fine. What I would only request you to do is experiment with what I'm saying and see if it works for you. See, for past we use drama कि अब तक जो recording हुई आज हम चले हैं, but हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे अभी का जो our future, our destiny is somewhere in our hand today. I can't say कि okay मैं क्योंकि ड्रामा है मैं तो कुछ नहीं करूंगा और अपने आप ड्रामा चलता रहेगा, नहीं. वैसे तो अगर हम सोचे तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा. इज दैट राइट? अगर मैं बोलूं कि अच्छा ड्रामा में पानी होगा तो पानी मेरे पास चल के आएगा, नहीं. फॉर दैट पानी आई हैव टू मेक दैट एफर्ट. So what is in my hand is a very important question. Every thought, word, action that I'm creating today is in my hand, and that is what is deciding my destiny, my future. That is in my hand. मैं क्या अपने लिए accumulate करता हूँ? What do I mean by accumulate? See, on a soul's journey typically, okay, on a soul's journey we don't carry anything physical. मैं last birth में wherever I may have been, अगर ये आप last birth का भी if you want to have a little more idea, तो जैसे ना कोई भी book है, many masters, many lives, lot of scientists, lot of psychologists have done lot of these researches on past life regression and lot many other things. I'm not asking you to get there because see, nature ने ना हमें वो चीज़ें भुलाने का दिया है. There is a reason behind it. If we start remembering and recollecting all of that, we may just create a lot of chaos. So I'm not saying to go in that way. I'm just giving you an idea that these things are something that people have talked about, have done a lot of research about. तो कहीं ना कहीं नेचर ने हमको भुलाया है, तो अच्छी बात है, सब कुछ याद करना जरूरी भी नहीं होता. बट इमेजिन उस पास्ट लाइफ से हम कुछ भी नहीं लेके आते हैं. इज दैट राइट? थिंक अबाउट इट. व्हाट एम आई आस्किंग? हम पास्ट लाइफ से कुछ नहीं लेकर आते. इज दैट राइट? नो मैम. नहीं, नो मैम. कुछ नहीं लेकर आए पक्का? कोई संदूक, कोई कबर्ड, कोई बैगेज, लगेज कुछ लेकर आए? याद करो, कुछ तो लेकर आए होंगे. मतलब कुछ कपड़े, कुछ अच्छे से शू. मैम संस्कार लेकर आते हैं. Wonderful. कुछ That's संस्कार. absolutely right. So whenever a soul moves to a new journey, nothing of this physical world is what we carry. But we definitely carry the sanskars that we've created. Ab how do I create these sanskar? Thought, word, action that I keep repeating again and again becomes my sanskar, and that is what I carry. So what is in my hand? The sanskar that I'm going to carry in my future birth. That is in your hand, Vikash. And that sanskar somewhere decides my destiny and my experiences of life. Yeah, so that's how this world drama, 5,000 years world drama cycle works. You may take time to kind of digest this thing that we've discussed, but no problem. ठीक है, आप जितना जितना इसको यूज करना, कैसे कैसे यूज करना चाहते हैं. The main important highlight that I have for all of you is it's this time right now. और जितना जितना हम अपने संस्कारों को उतना एलिवेटेड बना रहे हैं, उन 7 innate values से अपने को फिर से भर रहे हैं. We are creating a future destiny where we are ready for that new world. And all of us are the ones who are creating that new world for ourselves. हाँ. एक्चुअली सिस्टर, वन मिनट. एक्चुअली सिस्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब गोल्डन पीरियड में है हम लोग, तो जैसे कि देख रहे हैं कि पृथ्वी का भी सोइल है वो फर्टिलाइजर धीरे खत्म होते जा रहे हैं और वातावरण भी काफी मतलब प्रदूषित होते जा रहा है. तो मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि इसके बाद सारे धरती से मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब खत्म हो जाएंगे और सारे जो सुप्रीम सोल के पास चले जाएंगे
उसके बाद फिर से पृथ्वी वैसे ही मतलब क्रिएट होगा और फिर हम लोग वहां से आएंगे। Okay, so that transition by itself is a very deep topic. उसके लिए, see, what you're saying is right, but I'll in short say what you're saying is right. So once all the souls are going back to the soul world, yes, the entire Prithvi will go through that transition phase. See, when अब मुझे एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ. सी आई नॉट गेट टू मच इन डेप्थ इनटू दिस बिकॉज आई मे नॉट बी द राइट पर्सन. वन इज दैट, ठीक है, बहुत इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए. मुझे जितना है उसमें भी आई नो देर इज अ लॉट दैट इज देयर इनटू इट. आई मे नॉट बी अवेयर. एंड सेकेंड इज इट्स टू अ डीप टॉपिक फॉर दिस 10 minutes डिस्कशन, है ना. वी लेफ्ट विथ सम 10 minutes उसमें ही बहुत. लेकिन मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ. सोचो ये जो खाद वगैरह बनती है, ओके, डिकम्पोजिशन, ऑल ऑफ दैट हैपन्स, राइट. तो ये जो सारा खाद बनता है, यू नो, ये जो बॉडी है ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर डिकम्पोजिशन थिंग. इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? या नाउ इमेजिन ऑल ऑफ दीज बॉडीज. अब सपोज जो सारा ट्रांजिशन हो रहा है, नेचर कुछ ना कुछ करेगी, सुनामी, earthquake, so many things happening, right? So many things happening, so many souls leaving the body and going back home. तो ये पृथ्वी को भी तो उतना वो सारा मिलेगा ना. I'm not saying in a negative or a positive way. I'm just saying that transition will happen. But my role, what is my role is very important here. What is it that I contribute to this transition is how much I feel. So physical environment में जो changes होना होगा वो definitely होगा. And there is a process, okay, but what is my work here? What is in my hand? Very simple. How much have I filled myself with these 7 innate qualities? So then I create a wonderful future for myself, and you know, that future destiny of being a part of that wonderful golden world. Yeah, so your question is very important, but इस टाइम पे उससे डेप्थ में हमें जाने का मतलब, you know, it's not helping, because somewhere if I get into how this entire environment will change, possibly we may lose out on this Raja Yoga thing that we want to kind of get into depth. तो इसलिए that's the only reason. ठीक है, is it making some sense? World cycle drama, little heavy to digest, but I'm sure as you go along, you experiment, you experience, you may come up with your own understanding about it. ठीक है. I hope, Renu, that also answers your question of liberation, why people seek liberation. It's that period when the soul leaves this physical body, goes back to the soul world. मुक्ति में उतना समय रहती है, and then comes back to जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति meaning जीवन में रहते बंधन मुक्त स्थिति, उसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं. जो सतयुग में जो सोल्स होती हैं, बिकॉज वो बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल डिटैच्ड रहती हैं, और इसीलिए क्या होता है, यू बीइंग इन दिस लाइफ, वी आर नॉट, यू नो, वो बॉन्डेज में नहीं रहती हैं, बिकॉज वी आर सोल कॉन्शियस. तो अभी जो बॉन्डेजेस है ना, उसमें नहीं रहती है, वो उससे बियॉन्ड रहती है. तो पहले हम जाते हैं मुक्ति में, मुक्ति से फिर हम आते हैं जीवन मुक्ति में. इसीलिए that liberation is there, but only for a while. We don't completely free ourselves from this cycle of birth and death. That only one soul, that supreme soul, has that role to not come in the cycle of birth and death. So that's the first question. I think I've tried answering that question. Before I move to other questions, let me finish Raj Yoga bit first. Now, one is कि जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो हम इन 7 गुणों से, सतो प्रधान, हमने देखा ना सतयुग में द सोल इज सतो प्रधान, 7 innate values की प्रधानता, मीनिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बीइंग, वेयर आई एम एबल टू एक्सपीरियंस these 7 innate values completely, fully in my highest form at all points in time. That's the experience. ओके, तो अभी राजयोगा से हम क्या करते हैं, हम आत्मा में उन गुणों और शक्तियों को भरते जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, वी आर ऑल्सो फिलिंग आवर सेल्स विद अष्ट शक्तियां, जिन्हें हम कहते हैं ना 8 powers of the soul. I'll quickly take you through that also. Okay, so these are 8 powers of the soul.
These are most important 8 powers of the soul. I wouldn't say कि बस 8 ही शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी इनमें भी, जैसे हमने देखा ना पावर जो वैल्यू है उसमें फिर करेज और डिटर्मिनेशन वो सारा, तो ऐसे बहुत सारी पावर्स होती है, बट टिपिकली एसेंशियली दीज 8 पावर्स इज व्हाट सोल हैज. Okay, and through Raj Yoga we come back to this stage where we experience these 8 powers of the soul. First is power to withdraw and second is power to pack up. Why have I bracketed both of these together? Because ये जो दो powers हैं हम typically self के लिए और relationship में use करते हैं. Why am I saying that? Self के लिए typically use करते हैं. If you see self के लिए, अभी what do I mean by self के लिए use करते हैं power to withdraw and pack up? Let's say if you want to empower yourself, if you want to practice Raj Yoga, but I'm constantly thinking about ये वो यहाँ वहाँ इन्होंने ये बोला ऐसे हुआ ये situations, then I'll not be able to spend that time with myself, right? And that's where I need power to withdraw. टिपिकली टॉर्टोइस क्या करता है, विड्रॉ करता है बाहर से, अपने सारे सेंसेस विड्रॉ करता है, अंदर जाता है. नाउ व्हाट डू वी डू इन राजयोगा? हम बाहर की बातों से मन बुद्धि को विड्रॉ करते हैं. सो पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू पैकअप, मीनिंग पावर टू पैकअप एज इन उन सब बातों को पैक करके समेट के हम रख देते हैं, समेट कर रख देना. नाउ दैट्स द टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ. It's the me time that लोग कहते हैं ना I need me time. Now what is that me time? मैं me time करके बैठ जाता हूँ और फिर यहाँ वहाँ का चल रहा है. Then it's not me time. Me time is मन बुद्धि से withdraw करके बातों को pack up किया and then I have my me time. That's Raj Yoga. Me time meaning awareness of the self, me as in who. And that's what Raj Yoga gives us. अभी भी हम जितने 7 दिन में सुना, हमने इन बातों को समझा ना कि कैसे विड्रॉ करना है, कैसे अपने पर फोकस करना है, अपने पर अपना सारा अटेंशन लेकर आना है. सो दीज आर टिपिकली 2 values or 2 powers that we need for the self. Now let's come to other 2 values which we typically need in relations. Power to tolerate and power to accommodate. Tolerate क्या करना है? उनके संस्कार, लोगों के संस्कार, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कैसा बिहेव करता है, कोई कैसे करता है, उन सब बातों को टॉलरेट मीनिंग हाय मैं तो इतना टॉलरेट करता हूँ, उसको तो मुझे ही टॉलरेट करना पड़ता है, सारे दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है और मैं ही टॉलरेट करता हूँ. इज दैट टॉलरेट? वेरी क्विकली, येस और नो? नो मैम. नो. क्यों सोनू? व्हाई इज इट नॉट टॉलरेट? टॉलरेट मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना, उस चीज को सहन करना, मतलब हम शिकायत कर रहे हैं वापस इससे. शिकायत कर रहे हैं मतलब टॉलरेट तो हुआ ही नहीं ना. जहां टॉलरेट हुआ, सोनू यू आर एब्सोल्युटली राइट, जहां टॉलरेट हो गया वहां वो कंप्लेन तो आएगी ही नहीं, बिकॉज यू हैव टॉलरेटेड, इट्स ओके. एंड सेकंड इज accommodate. Accommodate meaning typically if we look at an ocean, ठीक है, ओशन क्या करता है, नदियां जहां जहां से आती है समा लेता है. तो आसपास सभी, मेरे आसपास जितने लोग हैं, उनकी आइडियाज, उनके व्यूज, उनके सजेशंस, उनकी बातें, आई अकोमोडेट. सो दीज आर 2 powers that I use when it comes to people around me. ठीक है, so 2 powers that we use for ourselves that Raj Yoga helps us develop is power to withdraw, pack up, in relations, tolerate and accommodate. When it comes to work, जब हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो we need 2 powers, power to discern and power to decide. Discern is typically, अगर हम regular भाषा में बोलें तो discriminate. Discriminate मतलब ये नहीं कि गोरा तुम ऐसा, वो नहीं. Discriminate meaning power to understand what's right and what's wrong, what's doable, what's not doable, what's feasible, not feasible. वो हो गया power to discern कि ये ऐसा है, ये है, समझना. ठीक है. And once we are able to discern what is right and what is wrong, we are able to make our decisions. हमारे लाइफ के decisions हम ले पाते हैं. So these both things are related to our behavior, our action and our work. Power to discern and power to decide. And in situations, power to face and power to cooperate. Why am I saying power to face? कोई भी बात हमारे सामने आ गई, उसे फेस करने की शक्ति, उसको क्रॉस करने की शक्ति.
कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, सबके साथ मिलकर उसको, जैसे कोई फेस्ट आपके है, स्पोर्ट्स डे है, कुछ है, सबके साथ मिलकर उसे सक्सेस बनाने की पावर टू कोऑपरेट, राइट? सो दीज आर 8 पावर्स ऑफ द सोल। और ये जो शक्तियाँ हैं ये बुद्धि की शक्तियाँ हैं अगर आप देखो तो। और राजयोगा में क्या होता है, क्योंकि हम बुद्धि को इतना एम्पावर करे जा रहे हैं, हम बुद्धि को देखो, कोई भी चीज़ आप जितना यूज़ नहीं करेंगे ना उतना वो उसको जंक लगते जाएगा। लेकिन मशीन को जब आप यूज़ करते रहते हो ना, दिस लैपटॉप आई गॉट ऑलमोस्ट व्हाट, आई थिंक अबाउट 6-7 years बैक का ये मेरा लैपटॉप है, बट मैं अभी तक भी इसी को यूज़ कर रही हूँ और इतने सालों से। बट इट इज़ ओनली, वो एक ही बार क्रैश हुआ था, उसको मैंने ठीक कराया, वो चल रहा है, ओके। बट अगर मैं 2-3 साल इसको यूज़ ही नहीं करती और फिर इसको उठाती तो शायद ये नहीं चलता। अब बुद्धि का क्या होता है, कुछ दिखा, संस्कारवश खा लिया, बुद्धि को बाईपास कर दिया, बुद्धि यूज़ नहीं हुई। लेकिन वी बिकम मोर अवेयर ऑफ आवर लाइफ चॉइसेस नाउ। सब खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, मैं खाऊं नहीं खाऊं मेरी चॉइस, आई यूज़ माई पावर, माई इंटेलेक्ट कि ये सही है गलत है। तो इस तरह से जितना जितना हमारी बुद्धि एम्पावर होती जाती है, एक तो बिकॉज आई एम मोर अवेयर ऑफ यूजिंग माई इंटेलेक्ट इन अ राइट वे, एंड सेकेंड बिकॉज आई हैव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सुप्रीम। वो शक्तियाँ उन वरदानों के रूप में हम उस ऊपर वाले से भी लेते हैं, तो ये अष्ट शक्तियों को हम अपने में भर पाते हैं। Yeah, so these, one is 7 values of the soul that we kind of fill ourselves with, and second, these 8 powers of the soul। जितना जितना आप इसको लाइफ में उन ब्लेसिंग्स के रूप में अपने लिए अनुभव करेंगे, जितना जितना इसको लाइफ में यूज़ करेंगे, उतना उतना आप देखेंगे ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इज इट मेकिंग सम सेंस? या बट द ओनली वे टू ब्रिंग इट इनटू आवर लाइफ इज बाय 2 ways। इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने के 2 तरीके हैं, और वो हमें बहुत क्लियरली समझना होगा। नहीं तो मैं राजयोग का 15 साल से सीखी हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आई मे स्टिल एंड अप बीइंग द सेम लाइक आई वाज 15 years बैक। ज़रूरी नहीं है जो 20-20 साल तक मेडिटेशन किसी स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़े हैं उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के 2 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज, और जितना इंटेंसली आप प्रैक्टिस करोगे ये 2 चीज़ें, उतना आप इन चीज़ों को अपने में धारण कर पाओगे, वैल्यू को, अब मतलब उन चीज़ों को अपने लाइफ में, जीवन में ला पाएंगे। वो 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो जो कल हमने बात किया था, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, वो राजयोगा की जो टेक्निक है उसको सही रीति से प्रैक्टिस करना, अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरना, अपनी उन गुणों और शक्तियों को सरफेस पर लाना। आई एम अ पावरफुल सोल, उसको हमने सरफेस पर लाया, हूँ मैं ऐसी, उस विश्वास के साथ उसको सरफेस पर लाया। जितना जितना सरफेस पर लाया, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। एंड सेकेंड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियलाइजिंग इट, बट सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुटिंग इट इन टू प्रैक्टिस। कोई सिचुएशन आई, pause and choose your response very cautiously. Do it for 2, 3, 4 times. Now you are bringing those values in practice. स्पिरिचुअलिटी बस बैठना, 2 घंटे बैठ के योग करना नहीं, आप 10 मिनट करो, इतना पावरफुल हो। लेकिन पूरा दिन वो अवेयरनेस हो ऑफ हु आई एम, पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी इन एप्लीकेशन। मेरा हर कर्म इन गुणों के आधार पे हो। आई चूज टू ऑपरेट आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सोल, आई चूज टू ऑपरेट बेसिस द पावर्स ऑफ द सोल। दैट दीज आर 2 ways to make these values and powers a part of our lives। और यही संस्कार हैं फिर जो हम आगे कैरी करके जाएंगे, और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ का जितनी चीज़ें हैं ना जो हम देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। एक छोटा बैग भी नहीं लेकर जाने मिलता। वही मेरा फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत महंगा फ़ोन है, बस ये लेके जा सकूँ मैं, वो भी नहीं लेके जाएंगे। कोई बहुत अच्छी सी ज्वेलरी है, बहुत अच्छी रिंग है, उतना छोटा तो लेके जाने मिलना चाहिए, कुछ नहीं लेकर जा पाएंगे। हाँ, जो चीज़ लेकर जाएंगे, जितना जितना इन गुणों और शक्तियों से भरकर प्रैक्टिस में लाया, वो लेके जा पाएंगे। दैट्स द ओनली थिंग। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकर बस ये जाएंगे। और उसके लिए थोड़ा एफर्ट,
क्यों वो एफर्ट ज़रूरी है? One, because like we discussed, it is that time of transition and it's a choice that I have to make अपने जीवन को लेकर. एंड सेकेंड, क्यों प्रैक्टिस? बिकॉज ऑपोजिट वाले संस्कार बहुत टाइम से प्रैक्टिस किए ना. हम में से हर ने किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो प्रैक्टिस की ना. किसी ने गुस्सा बहुत कर लिया है, किसी ने जेलसी बहुत कर ली है, किसी ने इनसिक्योरिटी बहुत कर ली है, किसी ने अकेलापन बहुत कर लिया है. तो वो किया है ना प्रैक्टिस. तो अब इसकी प्रैक्टिस, थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस करते 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 जब ये संस्कार बन जाएगा तो you become a part of that collective consciousness who is bringing about that satyug in this world.